Hello students, today we are going to talk about Gabriel Okara's poem Once Upon a Time. You see, Gabriel Okara is a Nigerian poet and novelist. He was largely a self-educated man. He was quite apprehensive about what would happen when the ancient culture of Africa is faced with the modern Western culture. So he pursues this theme in his novel The Voice and in his poem Once Upon a Time, critiquing soulless lives and machine-like existence of modern day humanity. तो यहाँ पर एक वो आलोचना कर रहे हैं कि किस तरह से मॉडर्न डे सोसाइटी जो है उसमें लोग जो हैं कैसे मशीन जैसी लाइफ एक सोललेस लाइफ लीड कर रहे हैं. So this poem is a conversation between a father and a son, where the father wants to learn from his son what it is to be natural and innocent state. In the first stanza, the poet remembers the past when the people used to have true feelings for each other, something which is missing in the modern world. The people in the old times, they used to laugh heartily and their love was reflected in their eyes. But now they only laugh with their teeth. So let's see what the poet is saying. So this poem is just a conversation between the father and a son. So father is talking with the son. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. Father is telling the son that there was a time. There was a time means when he was a child, when father was a child. Then they used to laugh with their hearts and they used to laugh with their eyes. So the point is that when they had, the father is telling the son that there was a time when they had true feelings for each other and something which is missing in the modern world. Now they only laugh with their teeth. Now they only laugh with their teeth while the eyes block, cold eyes search behind my shadow. So now they only laugh with their teeth. There is no laugh, no affection. The eye and they are laughing only with their teeth means that their eyes are cold. Cold and eyes block cold. What does it mean? Eyes block cold. That they don't have any feelings, any affection, any concern for the person whom they are showing their teeth, with whom they are laughing, with whom they are talking. जिस जने से आप हंस के बात कर रहे हो उस जने के लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, सिर्फ एक सोशल मैनर्स हैं, इसलिए आप उसको हंस के दिखा रहे हो और उसके साथ बात कर रहे हो. तो हंसी जो है वो खोखली है, इट इज होलो. दैट्स व्हाई इट सीम्स कि यू आर लाफिंग ओनली विद योर टीथ. कि हंसने में सिर्फ दांत दिखा रहे हो, अंदर तो भावनाएं हैं ही नहीं, मन में तो फीलिंग्स है ही नहीं, तो वो दिखेंगी कहां से. So he tells, he confesses. जो फादर है वो कन्फेस कर रहे हैं, इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि नाउ दे लाफ ओनली विद देयर टीथ while their eyes block cold eyes search behind my shadow. कि आंखें जो हैं वो तो बर्फ जैसी ठंडी हैं, वो उसकी उस शैडो को ढूंढ रही हैं. कौन सी शैडो? जो बचपन में हुआ करती थी, जब उसके पास फीलिंग्स होती थी दूसरे के लिए. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts. So there was a time when they had love, when they used to shake hands, when they used to meet people, they used to embrace them with wholeheartedly. They used to embrace them with their hearts. But that's gone. But that period is gone. The father laments. That period is gone. Now that love is not there. Now they shake hands
Now they shake hands without hearts. Now also at present again they shake hands with their friends or with their relatives, but without hearts. Without hearts, love is not there. Feelings are not there. Feelings of concern, no concern is there. No love is there. While their left hand search my empty pockets. So they just pockets are empty. Empty pockets again show कि no love is there, no connection is there, no concern is there. है ना? They are shaking hands without love, without affection, without any sentiment. A great change has come. Feel at home, come again. Feel at home, come again, they say. When I come again and feel at home, once, twice, there will be no twice. Generally we say, nowadays we say, people feel at home. घर जैसा सा महसूस करो. फिर आना, दोबारा आना, है ना? फेस पे स्माइल लेके हम लोगों को कहते हैं, कोई घर आता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अपना ही समझो, फिर आना, है ना? एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम, और फिर मैं अगर मान लो दोबारा जाऊं उस जने के घर और वहां घर जैसा सा महसूस करने के लिए करना शुरू करूं, तो मैं एक बार जाऊंगा या 2 बार जाऊंगा, तीसरी बार तो जाने की वहां गुंजाइश ही नहीं रहेगी. फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी. क्योंकि तब तक तो एक बार जाने से 2 बार जाने से तो वो लोग मेरे को बिहेवियर ही ऐसा देंगे, अपना एटीट्यूड ही इतना कोल्ड और डल देंगे कि मेरा तीसरी बार तो जाने का मन ही नहीं. तो दिस इज दियर, है ना? तो जो ये हम फ्रेजेस यूज करते हैं कि घर जैसा सा महसूस करना, अपना ही घर समझो, कम अगेन, फिर से आना, है ना? और जब हम जाते हैं या हम घर जैसा सा महसूस करते हैं तो हम उस जने के घर 1 या 2 बार ही जा पाएंगे, तीसरी बार तो जा ही नहीं पाएंगे, है ना? So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses. Simile is there. The poem is so simple, but it gives us the spirit of the society. So father is telling the son that he has learned many things from the society. He has learned to wear many faces, to change his attitude, to change his behavior like dresses. फादर अपने बेटे को बता रहे हैं कि भी उन्होंने इस सोसाइटी से बहुत कुछ सीख लिया. उन्होंने अलग अलग तरह के मुखौटे पहनने सीख लिए हैं. मुखौटे पहनने सीख लिए का मतलब है कि सीन और सिचुएशन के हिसाब से उनको अपना व्यवहार, अपना रवैया, अपना बिहेवियर बदलना आ गया है. जैसे कोई ड्रेस बदलता है ओकेजन के हिसाब से, उसी तरह से उनको अपना बिहेवियर, अपना मूड, अपना रुख बदलना आ गया है. Home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. घर में अलग तरह का चेहरा, ऑफिस में अलग तरह का चेहरा, स्ट्रीट गली में अलग तरह का चेहरा, घर कोई आए तो आप होस्ट हो तो अलग तरह का चेहरा, कॉकटेल फेस पार्टी में अलग तरह का चेहरा. हर ओकेजन के हिसाब से बिहेवियर आ गया और उसके हिसाब से स्माइल देनी भी आ गई, जैसे कि एक फिक्स पोर्ट्रेट की स्माइल. एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट. और मैंने सीख लिया है कि कैसे सिर्फ मुझे अपने दांतों से हंसना है और बिना भावनाओं के हाथ मिलाने हैं. आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, और मैंने गुड बाय कहना भी सीख लिया है. व्हेन आई मीन गुड रिटर्न्स. मुझे गुड बाय कहना आ गया है, जबकि मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा हुआ जान चुकी. टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, कि मुझे कहना आ गया है कि आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, और वेयर एज इन रियलिटी आई एम लीस्ट ग्लैड इन मीटिंग दैट पर्सन. है ना? कि आपसे मिलके अच्छा लगा, जबकि हमें मिलके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. तो वो अफेक्टेशन, वो दिखावा
करना मैंने सीख लिया है. To say it's been nice talking to you after being bored. है ना? The poem is totally in a conversational style, or to say colloquial style. COLLOQUIAL. colloquial style क्या? बोलचाल वाली भाषा. तो कह रहा है कि ऐसा कहना कि भाई हाँ अच्छा लगा तुमसे बात करके, जबकि हम उस जने से बात करके बुरी तरह से बोर हो गए. बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी. तो जितना ऑनेस्टली फादर ने सन के सामने कमिट किया है, कन्फेस किया है कि भी मेरे में बिहेवियर इतना चेंज आ गया और मैंने सोसाइटी से ये सब सीखा है, डबल स्टैंडर्ड रखने मुझे आ गए हैं, उतना ही ईमानदारी से वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, कि मैं वैसा ही बनना चाह रहा हूँ जैसा मैं पहले हुआ करता था. व्हेन आई वाज लाइक, जब मैं तुम्हारे जैसा था. आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज न्यू थिंग्स, कि मैं ये सब सारी चीज़ों को अनलर्न करना चाह रहा हूँ. जो भी ये घटिया चीज़ें मैंने सोसाइटी से सीखी हैं, जो ये दोहरे मापदंड रखने सीखे हैं, जो ये डबल स्टैंडर्ड सीखे हैं, सबको मैं छोड़ना चाह रहा हूँ. मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ. सबसे बड़ी बात, फादर वॉन्ट्स टू रीलर्न हाउ टू लाफ, कि वो फिर से सीखना चाह रहे हैं कि हंसना कैसे है. फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक ए स्नेक्स बेयर फैंस. कहता है कि क्योंकि कहता है मिरर में तो मेरी हंसी से सिर्फ मेरे टीथ दिखाई देते हैं, लाइक ए स्नेक्स बेयर फैंस. देखो सिमली कितनी अच्छी यूज की है कि सांप के डंक, जो बेयर मतलब नंगे, वो अपनी हंसी को सांप के फन के साथ कंपेयर करके बता रहा है. क्योंकि वो जो हंसी है, जो हंसी इसमें सिर्फ दांत दिखाई दे रहे हैं, भावनाएं नहीं दिखाई दे रही, यानी कि जो हंसी इतनी दिखावेबाज है, जो हिपोक्राइट है, तो वो स्नेक के फैंग से कम नहीं है ना. तो इसलिए ये बहुत अच्छे से, एक बहुत पंजेंट वे से पोइट ने इस सिमली से कन्वे किया है कि ये कितनी गलत बात है जो सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो हिपोक्राइट हैं, अफेक्टेशियस हैं, डबल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं. तो वो कह रहे हैं कि भी ये जो मेरी हंसी शीशे में दिखाई दे रही है तो सिर्फ दांत दिखाई दे रहे हैं, और ये दांत उतने ही भयानक हैं जैसे स्नेक के फैंग्स, है ना. तो ऐसा व्यक्ति नेचुरली जो सिर्फ खोखली हंसी हंस के दिखा रहा है तो वो पॉइजनस है, स्नेक जैसा ही. सो शो मी सन. तो फादर अर्नेस्टली अपने बेटे को कह रहे हैं कि मुझे सिखाओ हाउ टू लाफ. शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल. जरा मुझे दिखाओ मैं कैसे हंसा करता था, कैसे स्माइल देता था. वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू. वंस अपॉन अ टाइम, किसी जमाने में, किसी समय में मैं तब तुम्हारे जैसा होता था. इसी समय में जब मैं तुम्हारे जैसा होता था तब मैं कैसे हंसा करता था, कैसे स्माइल देता था. जस्ट टेल मी, है ना. बिकॉज द चाइल्ड इज स्मॉल, और चाइल्डहुड जो एज है वो प्योर होती है, वो इनोसेंट होती है, उसमें कहीं करप्शन नहीं होता, कहीं उसमें दोहरे मापदंड नहीं होते. सो द फादर अर्नेस्टली डिजायर्स टू बी सिंसियर, to be sincere, or to have feelings and emotions and sympathy or moral or human values for the society in which he is living, है ना. सो पोइट ने बहुत अच्छे तरह से सोसाइटी की एक इस बुराई को, इस इविल को दिखाया है. So the poem is really beautiful and I hope you must have understood the poem, and the notes are available in the description box given in the link. Thank you.